Hello friends, good morning. Let's start today. NV for 10.4. NV number 1. The vector product of two non-zero vectors A vector and B vector is denoted by A vector cross B vector and defined as A vector cross B vector is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta into n cap. Here n cap is perpendicular on A vector and also B vector. It means here angle is 90 degree, here also angle is 90 degree. Next line we see mod of A vector cross B vector is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta mod of n cap is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta. Here n cap is an unit vector. We know that magnitude of unit vector is equal to 1. So mod of, it means magnitude of n cap is equal to 1. Imply that mod of A vector cross B vector is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta. We can write sin theta is equal to mod of A vector cross B vector upon mod of A vector mod of B vector. It means sin theta is equal to mod of A vector cross B vector upon mod of A vector into mod of B vector. NB number 2. I cap cross I cap is equal to, we can write on the basis of this formula mod of I cap sin theta n cap is equal to, here also we can see I cap means unit vector. I cap means unit vector. It means it has magnitude as 1. It also magnitude has 1. So we can put here I cap mod of I cap is equal to 1 mod of I cap is equal to 1. Sin, we see here I cap both are same. So here theta is equal to 0 degree. So you can here write theta is equal to 0 degree into n cap. 1 multiply sin 0 degree. We know that sin 0 degree is equal to 0. 0 multiply n cap is equal to 0. Imply that I cross I is equal to 0. We can also prove that j cap cross j cap is equal to 0. K cap cross k cap is equal to 0. Similarly, we can write here A vector cross A vector is equal to 0 because here angle is also 0 degree, because A vector and also A vector are same vector. It means here theta is equal to 0 degree. When put theta is equal to 0, then becomes sin theta is equal to 0. So total term is equal to 0. Similarly, B vector cross B vector is equal to 0. C vector dot C vector is equal to 0. Next can be 5. I cap cross J cap is equal to, we can write on the basis of this formula A vector cross B vector is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta into n cap. Here we can write I cap cross
j cap is equal to mod of I cap mod of j cap sin theta k cap, because we know that x axis is represented by I cap, y by j cap, z axis by k cap. We know that here n cap is perpendicular to a vector and also b vector. Here z axis is perpendicular on x axis and also y axis. So here we can write n cap, but directly we can write on the place of n cap is equal to k cap, because here z axis is perpendicular on x axis and y axis. It means I cap and j cap. So we can write here k cap. Mod of I cap is equal to 1, mod of j cap is equal to 1, because both are unit vector. Here angle is 90 degree. So theta is equal to 90 degree. We can write k cap. 1 multiply 1 is equal to 1, multiply sin 90 degree is equal to, we know that sin 90 degree is equal to 1. Sin 90 degree is equal to 1, multiply k cap. It means k cap. Imply that I cap cross j cap is equal to k cap. We can also prove that similarly 6 j cap cross k cap is equal to I cap. 7 k cap cross I cap is equal to j cap. We shall understand by circle figure I cap, j cap, k cap. I cap cross j cap is equal to k cap. I cap cross j cap is equal to k cap. J cap cross k cap is equal to I cap. J cap cross k cap is equal to I cap. K cap cross I cap is equal to j cap. K cap cross I cap is equal to j cap. Can be 8 number. A vector cross B vector is equal to 0, then theta is equal to 0, because we have read A vector cross B vector is equal to mod of A vector cross B vector is equal to mod of A vector mod of B vector sin theta n cap. Here theta is equal to 0, then sin theta becomes 0. It means total term is 0. It means A vector cross B vector is equal to 0. So here A vector cross B vector is equal to 0, then theta is equal to 0. It means A vector parallel B vector. 9 number in. If A vector and B vector represent the adjacent sides of a triangle, then area of triangle is equal to 1 by 2 mod of A vector cross B vector. We draw a triangle ABC. If AB vector is A vector, AC vector is B vector, then
area of triangle is equal to 1 by 2 mod of AB cross AC vector is equal to 1 by 2 mod of A vector cross B vector. When we learn about finding A vector cross B vector, then here put the value of mod of A vector cross B vector, then we get area of triangle. We shall learn in next NB finding A vector cross B vector. 10 number NB. If A vector and B vector represent the adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to mod of A vector cross B vector. We draw a parallelogram A, B, C, D. If AB vector is A vector, AD vector is B vector, then area of parallelogram is equal to mod of AB vector cross AD vector is equal to mod of A vector cross B vector. Here put the value of mod of A vector cross B vector, then we get area of parallelogram A, B, C, D. Now in NB number 11 we shall learn finding A vector cross B vector. If A vector is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap and B vector is equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, then by determinant method we can write A vector cross B vector is equal to determinant of I cap, j cap, k cap, x1, y1, z1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2. For the example, if A vector is equal to I cap plus j cap plus k cap and B vector is equal to 2 I cap plus j cap plus k cap, then we find A vector cross B vector is equal to I cap, j cap, k cap on the basis of this formula I cap, j cap, k cap. I cap, j cap, k cap, x1 is equal to 1, y1 is equal to 1, z1 is equal to 1, x2 is equal to 2, y2 is equal to 1, here z2 is equal to 1. We solved it about the determinant method is equal to I cap into I cap. First row and first column are cancelled, then remains as 1, 1, 1, 1. 1 multiply 1, 1 minus 1 multiply 1, 1. Next, here minus is present, so we can write minus j cap into here first row and second column are cancelled, remains as 1, 1, 2, 1. 1 multiply 1 minus 2 multiply 1, it means 1 minus 2, plus k cap into 1, here first row and third column are cancelled, remains as 1, 1, 2, 1. 1 minus 2, 1 minus 2. 1 minus 1, 0 into I cap, it means 0.
minus j cap 1 minus 2, it means minus 1 minus plus 1 multiply j cap is equal to j cap plus 1 minus 2, it means minus 1 plus minus 1 k cap, it means k cap. We get a vector cross b vector is equal to j cap minus k cap. Next, if a vector and b vector represent the adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram is equal to mode of a vector cross b vector. Then here we find magnitude of, it means mode of a vector cross b vector is equal to under root x square plus y square plus z square. Then we put the value of mode of a vector cross b vector here, then we get area of parallelogram. And also if a vector is so and b vector is so, then if a vector and b vector represent the adjacent sides of a triangle, then area of triangle is equal to 1 by 2 mode of a vector cross b vector. We can write here mode of a vector cross b vector from here. Then we get area of triangle. Next NB, we read a vector cross b vector is equal to j cap minus k cap, let C. Then here C vector is perpendicular on a vector and b vector. We have read a vector, b vector, then here n cap is perpendicular to b vector and also a vector. So here C vector is present on a vector and b vector. So here we can write C vector. Next NB, a vector cross b vector is a vector quantity. So we can write next NB 13, a vector cross b vector is equal to minus of b vector cross a vector. Similarly, we can write b vector cross c vector is equal to minus of c vector cross b vector. We have read if direction of a vector is left to right, then direction of minus a vector is right to left, because a vector is vector quantity. A vector and minus a vector have not same direction. So here also a vector cross b vector and b vector cross a vector have not same direction. If a vector cross b vector has direction as left to right, then b then here direction as minus of a vector cross b vector.
If we solve it here, then we get A vector cross B vectors minus B vector cross A vector. It means minus of A cross B vectors. It means minus minus plus A vector cross B vectors. Next NB40. A vector cross B vector plus C vector is equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector. Next NB15. Lambda A vector cross B vector then lambda A vector cross B vector is equal to A vector cross lambda B vector. Here lambda is a scalar. आइए हम लोग अब इसे हिंदी में देखते हैं। ये एनबी है 10.4 के लिए। एनबी नंबर 1, दो सुनिश्चित सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है और इसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप के द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी कि इतना बराबर इतना। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे जो ये एन कैप होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर ये जो एन होता है कैप वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ भी इसके साथ भी 90 डिग्री है और बी जो है वेक्टर इसके साथ भी 90 डिग्री है। अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं, इसको ऐसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, जैसे ये हमारा बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ये जो एन कैप है, मान लीजिए मेरा एन कैप है, तो इस पर हम रखते हैं ऐसे, तो ऐसे दिखाई देगा। अब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है कि अब क्या होगा, लंब हो जाएगा बी पर भी और ए पर भी। तो वैसा ही है, अब आपको समझ जाना है। अब आइए, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा मोड ऑफ एन कैप। दोनों तरफ मोड लिया गया, यानी कि मैग्नीट्यूड। मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, यहाँ एन कैप जो है मात्रक सदिश है। जब मात्रक सदिश है इसका मतलब ये है कि उसका मोड जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रखा गया। अब इसको हल करने के बाद इतना आ जाएगा, इम्प्लाइड एट मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो इतना बटा में इतना, यानी कि साइन थीटा बराबर इतना हो गया, आई वाला बटा में आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला यूनिट पर ध्यान देते हैं, 2 नंबर। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, हम लोग इस फॉर्मूले पर लिखेंगे, तो आई कैप मोड ऑफ आई कैप साइन थीटा एन कैप, इस फॉर्मूला पर लिखा गया। अब दोनों आई कैप है, यानी कि दोनों जो है, हम लोग जान रहे हैं कि यह एक्स एक्सिस पर है, दोनों आई है, तो जब दोनों आई कैप है इसका मतलब दोनों इसी पर है, तो उसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हम लोग जान रहे हैं कि आई कैप है, तो आई कैप क्या है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना होता है, 1 होता है। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान 0 डिग्री रखा गया और इनटू फिर एन कैप। वन मल्टीप्लाई 1 हो गया, मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 रखा गया, मल्टीप्लाई एन कैप जो कहते हो। अब ये तीनों हल किया जाए तो 0 हो गया, इम्प्लाइड एट आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी हमारा थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। आज जब रखा गया यहाँ पर 0 तो 0 टोटल 0 कर देगा।
इसी प्रकार यदि हम लोग और इस पर कुछ सीखना चाहें तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो यहाँ भी थीटा का मान क्या होगा 0 होगा। ऐसे फॉर्मूला पर लिखाएगा तो यहाँ 0 होगा तो पूरे टर्म को 0 कर देगा। इसी तरह से इसका भी 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। आइए अगला ध्यान देते हैं 5, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर, इस फॉर्मूले पर लिखा जाए तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप है। यहाँ क्या लिखाएगा आई कैप मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप साइन थीटा, और एन कैप की जगह हमने क्या किया के कैप, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर एन कैप क्या होता है लंब। तो यहाँ पर आई है एक्स एक्सिस और जे क्या है वाई एक्सिस, तो इस अक्ष तो दोनों पर लंबवत क्या है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लिए क्या लिया जाता है के कैप, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के कैप लिख दिया। अब यहाँ पर जो थीटा बनेगा आई और जे में कितना बनेगा 90 डिग्री, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर अब मान रखा जाए आई कैप जे कैप दोनों क्या है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का परिमाण जो होता है वो 1 होता है, इसका भी 1 इसका भी 1, और ये साइन 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री थीटा का मान है के कैप जो कहते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई के कैप 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई के कैप यानी के कैप, इम्प्लाई डेट आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, 7 नोट कर सकते हैं कि के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। इसको आइए हम लोग सर्किल फिगर से थोड़ा सा समझ लें। आई कैप हो गया, जे कैप हो गया और यहाँ के कैप हो गया, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो जब ये दोनों लिखेंगे देखिए डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तब दोनों का क्रॉस जो होगा वो के कैप होगा। जब यहाँ से शुरू करें देखिए आया है ना आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। अब जब मैंने जो दो बोलेंगे डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। जे कैप क्रॉस के कैप, तो अगला क्या आ रहा है आई कैप, तो यहाँ आई कैप लिख दिया गया। अब यदि आगे बढ़ते हैं के कैप और आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो अगला क्या है जे कैप, इसलिए के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। याद करने का आसान तरीका है, इस पर हम लोग ध्यान देकर याद कर लेंगे। आइए हम लोग अगला एन भी पढ़ते हैं 8 नंबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 तब थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान क्या होगा थीटा बराबर, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा की जगह पर क्या होगा 0 यानी कि 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जब ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब पूरा टर्म 0 यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा 0, और ये दोनों क्या होगा समांतर होगा यानी कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। जैसे मान लिया जाए त्रिभुज हम पाते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी और इसका सी, ये ए बी हुआ और ये ए सी। जैसे भी हो दो का या तो इनिशियल पॉइंट सेम हो या फिर टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी कि प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए या नहीं तो अंतिम बिंदु सेम होना चाहिए, उसके अनुसार ये बनता है। तो अब हमें ध्यान देंगे, तो यहाँ से जब अब इस ए बी के लिए हम लोग मान लो कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ए सी वेक्टर बी वेक्टर है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब इसी को हम लोग 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग कुछ अगले एनबी में पढ़ेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, और मोड हम लोग निकालना सीख ही गए हैं, परिमाण निकालना सीख ही गए हैं। यहाँ ध्यान देंगे 10 नंबर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर मोड ऑफ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये वर्ग के लिए भी काम आएगा, आयत के लिए काम आएगा और समचतुर्भुज के लिए भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जैसे एक समांतर त्रिभुज खींचते हैं ए बी सी डी, और ये ए बी हो गया और ये ए डी हो गया। इसके लिए मान लिया जाए कि ए वेक्टर दिया, इसके लिए बी वेक्टर, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, यानी कहने का मतलब है मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम लोग जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना सीख जाएंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे, इसका निकल जाएगा, और यहाँ पर भी मान रखेंगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 11 में, यदि ए वेक्टर बराबर इतना हो और बी वेक्टर इतना हो, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिटरमिनेंट मेथड से, सारणिक मेथड से हम लोग लिखते हैं बराबर आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पर जो रहता है x1 y1 z1 x1 y1 z1, और यहाँ x2 y2 z2, तो x2 y2 z2। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देन यानी तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह पर देख लेंगे 1 1 1, तो 1 1 1 लिखा गया। अब यहाँ देख लेंगे कि x2 y2 z2 चाहिए, तो यहाँ पर देख लेंगे वैल्यू, तो x2 y2 z2 2 1 1 2 1 1। अब डिटरमिनेंट मेथड से हल करेंगे, तो हम लोग हल करने के बाद जे कैप माइनस के कैप मिलेगा हम लोग को, तो ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हो जाएगा। तो ऐसे ही सब निकालना है, जब भी आए जो भी आए ऐसे निकालना है आपको डिटरमिनेंट मेथड से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि जैसे ए वेक्टर हो, मान लिया कि यह ए वेक्टर है और ये तुम्हारा ये बी वेक्टर है, तो इस पर एक लंबवत वेक्टर हम लोग पढ़े थे एन कैप, ऐसे होता है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे होता है, लेकिन इस पर हम दिखाना चाह रहे हैं बोर्ड पर, तो ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये एन कैप होता है, तो जब इस दोनों का क्रॉस निकलता है तो एन कैप आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर यदि इसको हम लोग सी मानते हैं, तो जो सी वेक्टर होगा ये वाला, तो ये क्या होगा, यहाँ जो दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो क्या होगा, लंब सदिश होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सी वेक्टर हो जाएगा, और ये लंब सदिश मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, इसके साथ भी 90 डिग्री और ये इसके साथ भी 90 डिग्री, क्योंकि हम आपको सिखाए थे उंगली पर कि ऐसे रखिए, और ये मान लो कि ये है और ये बी है, इस पर ये जो दिखाई दे रहा है एन कैप था पहले, तो सी कैप दिखाया गया आपको सी वेक्टर, तो इस पर यदि ऐसे रखते हो सी को, तो ऐसे होगा एन कैप, तो ये लंब हुआ कि नहीं हुआ, दोनों पर लंब है, इसी को हम लोग ऐसे दिखाए हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर जो भी क्रॉस निकलेगा तो उसका यदि नाम दिया रहेगा सी कैप, मान दे दिया जाएगा सी वेक्टर, तो वो इस पर क्या होता है, लंब सदिश। मान लीजिएगा दो आपको वेक्टर दिया रहे हैं, तो यदि दोनों वेक्टर का कह दिया कि लंब सदिश ज्ञात कीजिए, तो उसका हम लोग क्रॉस निकाल देंगे, तो वही हमारा लंब सदिश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सी जो निकला है सी कैप वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर पर लंब सदिश। आगे 12, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या होता है, सदिश होता है। 13 में आइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, सदिश जब है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उल्टा लिखाएगा, तो इसलिए माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस तरह से लिखना चाहेंगे बी क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 14 नंबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। 15 नंबर आइए, लेमडा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बराबर में होता है कि लेमडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस लेमडा बी वेक्टर। लेमडा कहीं रह सकता है, तो मान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर जो लेमडा होता है एक अदिश होता है। स्टे सेफ स्टे होम।